Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, quickly open your social 5 books and then we will start today's lecture. My dear students, as you know that we are on unit number 4, history, and today I am going to deliver its 5th lecture. But before moving on towards today's lecture, let's quickly recap what we did in the previous one. So my dear students, how was Roman architecture similar to the Greek architecture? The style of making the buildings semicircular is very similar to the Romans, and they also followed the art that was the sculpture of art making. They were greatly influenced by the Greeks. So my dear students, in today's lecture we will describe the salient features of Gandhara civilization. दो civilization हम इस unit में cover कर चुके हैं, Greek and Romans. Today we will discuss about a new civilization which was Gandhara civilization. Where was it? What was its religion, culture, society? We will discuss that all. So my dear students, where was Indus Valley civilization located? It was along इंडस रिवर. पाकिस्तान में मौजूद था, ये सब कॉन्टिनेंट में मौजूद थी, और इस सिविलाइजेशन के बारे में हम ग्रेड 4 में पढ़ चुके हैं. हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, मेहरगढ़ वर सम वेरी फेमस सिटीज़ ऑफ दिस सिविलाइजेशन. और इसके अलावा ये पंजाब और सिंध में जो है इसको देखा गया. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम गंधारा सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे. गंधारा सिविलाइजेशन की जो रिमेन्स हैं, दे वर फाउंड इन पाकिस्तान नियर KPK and in some parts of Afghanistan. So this civilization was along the border of Pakistan and Afghanistan. ये इस इलाके में मौजूद थी. आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. So my dear students, here you will see the map of Gandhara civilization. So अगर आप देखें, so this is the Gandhara civilization, और जो जो areas इसके हैं वो आप देख सकते हैं. These are the areas of गंधारा सिविलाइजेशन. ये तमाम उसके बाकियात हैं जो कि आपको मिलते हैं. ये सवात के इलाके में, पेशावर के इलाके में, चारसद्दा के इलाके में आपको इसके जो रिमेन्स हैं वो यू कैन फाइंड देम. So here you can see the map of Pakistan and the borderline, international borderline of Afghanistan and Pakistan. ये इन दो areas में खैबर पख्तूनख्वा and the area near the Kabul river in Afghanistan, ये आपको गंधारा civilization इस इलाके में इसके remains जो हैं वो मिलते हैं. So Gandhara civilization, quickly open page number 51 in your social 5 books. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. The word Gandhara is comprised of two words. Gandh means fragrance and Har means land. So my dear students, basically इसके बारे में दो थ्योरीज हैं. आपकी बुक में सिर्फ एक एक्सप्लेन की गई है. गंधारा सिविलाइजेशन या गंधारा का लफ्ज़ जो है ये संस्कृत से निकला है, और कंद का मतलब फ्रेग्रेंस है और हर का मतलब, यानी कि ये दो अलग अलग लफ्ज़ हैं और इनको जोड़ दिया क्या, गंधहर भी कहा जाता है इसको, यानी कि फ्रेग्रेंस, लैंड ऑफ फ्रेग्रेंस. हर का मतलब ज़मीन, लैंड, और गंध का मतलब फ्रेग्रेंस. इसके अलावा एक और थ्योरी भी है जिसके बारे में कहा जाता है कंद का मतलब है वाटर एंड हर मीन्स लैंड, यानी कि इसको लैंड ऑफ वाटर भी कहा जाता है. तो दीज आर द टू थ्योरीज विच आर फेमस अबाउट गंधारा लैंड और गंधारा सिविलाइजेशन, और ये संस्कृत का लफ्ज़ है. सो मीनिंग ऑफ गंधारा इज लैंड ऑफ फ्रेग्रेंस, और जो सेकेंड थ्योरी है उसमें लैंड ऑफ वाटर. The Gandhara civilization dates back from 600 BC to 5th century AD. So my dear students, ये civilization जो है ये Indus Valley civilization के बहुत बाद में आई है, यानी कि Indus Valley civilization is one of the oldest civilization. गंधारा civilization उसके बाद में बहुत अरसे बाद जो है यहाँ आबाद हुई. किस तरीके से आबाद हुई, क्या इसके बारे में important चीज़ें थी, let's discuss. So it was mainly located in Peshawar Valley और River Kabul, यानी कि ये पेशावर वैली में और रिवर काबुल के पास जो है ये मौजूद है. द मेजर सिटीज ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन वर पुरुषपुरा, जिसको अब पेशावर कहा जाता है, तक्षशिला, जिसको अब टेक्सिला कहा जाता है, एंड पुष्कवती, जिसको अब चारसद्दा कहा जाता है. सो दीज आर द नेम्स विच वर यूज्ड इन गंधारा सिविलाइजेशन, और ये इनके प्रेजेंट नेम्स हैं. Gandhara civilization is currently located in northern Pakistan and eastern Afghanistan, यानी कि ये पाकिस्तान के नॉर्थ NWFP जिसका पुराना नाम है और अब KPK है, ये KPK के कुछ इलाकों में, सवात के इलाके में और ईस्टर्न अफगानिस्तान के इलाके में आपको देखने को इसके रूइंस जो है वो मिलते हैं.
So my dear students, this is an overview, a bird eye view of Gandhara civilization. These are one of the remains that are found in Swat Valley. इसके अलावा ये काबुल रिवर है, where it meets the Indus River, और काबुल रिवर के along ही this civilization started. So the political history. The political history of Gandhara civilization is not like other civilization. This land witnessed different empires and rulers, which included Achaemenians, Greeks, Mayurians, Indo-Greeks, Scythians, Parthians, Kushans, White Huns, Hindu Shahi. So my dear students, गंधारा civilization की अपनी कोई पॉलिटिक्स या इनका वो नहीं था. ये बहुत सारे एम्पायर से इन्फ्लुएंस होके इनका रिलीजन और इनकी पॉलिटिक्स और इनका गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो उन तमाम से इन्फ्लुएंस्ड रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ एम्पायर्स जो हैं वो रूल के लिए और काबिज होती रहीं. मुख्तलिफ ज़माने जो हैं इनके आते रहे, जिनमें मुख्तलिफ अदवार थे. कुछ हंस का दौर था, कुछ पार्थियंस का दौर था, अलेक्जेंडर द ग्रेट का दौर रहा है, और इन तमाम में जो है हर किसी ने अपने अपने रूल में अपनी अपनी तरह से इस इलाके को रूल किया. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये ओल्डर मैप है ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन. जब इंडिया जो है वो या आप कह सकते हैं कि जब सब कॉन्टिनेंट जो है या हिंदुस्तान का एक इलाका होता था और उसको 16 हिस्सों में तकसीम किया गया था, गंधारा वाज वन ऑफ इट्स स्टेट्स और सिटीज. सो इसका नाम था महाजन पदास, और यहां पे अगर हम लोकेट करें, दिस इज गंधारा. ये इसका हिस्सा रहा हुआ है. ये वो हिस्सा है जब ये पूरा एक ही हुआ करता था और पूरा हिंदुस्तान कहलाया करता था, और यहाँ पर जो है ये गंधारा का हिस्सा है और ये टेक्सिला है जो कि इसका कैपिटल था. सो माय डियर स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ अदवार रहे हैं. जैसे कि अकेमेडियन अंपायर थी जो कि 600 से लेकर 400 BCE तक रही. इसके बाद ग्रीक्स जो है ऑफ मैक्सिडोन जो है, यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो है यहाँ पर दौर आया, और उसके बाद मायूरियन एम्पायर जो है नॉर्दर्न इंडिया जाने के लिए वो यहाँ से जो है एंटर हुए और उन्होंने टेक्सिला को अपना कैपिटल बनाया. इसके बाद इंडो ग्रीक्स का दोबारा ज़माना आया, यानी कि क्या हुआ कि ग्रीक्स एक दफ़ा चले गए थे जब अलेक्जेंडर जो है वो मर गया था, तो उसके बाद ग्रीक्स जो हैं दे गॉट होम सिक एंड दे लेफ्ट. लेकिन कुछ ग्रीक्स जो हैं वो बैक्टीरिया में जो है वो ठहरे हुए थे और उन्होंने दोबारा से इस इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया. फिर टाइम आता है स्काइथियंस ऑफ ईस्टर्न यूरोप, वो आके यहाँ पर काबिज हुए. फिर पार्थियन एम्पायर आई, और गोल्डन एरा जो था गंधारा सिविलाइजेशन का वो वक्त था जब यहाँ पर कुशान्स आए और उन्होंने जो है यहाँ पर बुद्ध मत जो है, बुद्धिज़्म जो है उसको स्टार्ट किया. फिर वाइट हंस का दौर आया, और वाइट हंस के दौर में गंधारा सिविलाइजेशन जो है इसका डिक्लाइन शुरू हुआ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब तक मुस्लिम एम्पायर आई इसका जो है वो डिक्लाइन जो है मुकम्मल हो चुका था एंड इट वैनिश्ड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, रिलीजन इनका क्या था? बिफोर द स्टार्ट ऑफ पर्शियन रूल द रिलीजन ऑफ पीपल ऑफ गंधारा वाज हिंदुइज्म. तो पर्शियन से पहले यहाँ का जो इस रीजन में रिलीजन देखने को मिला वो हिंदुइज्म था. बट व्हेन द रूलर ऑफ मायूरियन डायनेस्टी अशोका रूल स्टार्टेड, द स्टेट रिलीजन वाज डिक्लेयर्ड बुद्धिज्म. जब मायूरियंस जो हैं ये यहाँ पर आकर सेट हुए तो अशोका ने यहाँ का रिलीजन जो है उसको बुद्धिज्म जो है वो करार दे दिया. दिस रिलीजन प्रिवेल्ड एंड फ्लरिश्ड हेयर फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर अंटिल द अरब मुस्लिम्स केम हेयर एंड इंट्रोड्यूस्ड इस्लाम. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हज़ारों साल तक यही रिलीजन यहाँ पर प्रैक्टिस हुआ, और उसके बाद जो है जब मुसलमान यहाँ पर आए, वाइट हंस जब तक यहाँ पर आए थे तो बुद्धिज़्म का डिक्लाइन शुरू हो गया था, और जब तक मुसलमान यहाँ पर अरब मुस्लिम्स आके उन्होंने इन्वेड किया, मोहम्मद गजनी जो है वो उन्होंने आकर यहाँ पर इन्वेड किया, तो उसके बाद यहाँ से मुकम्मल जो है वो बुद्धिज़्म का जो है वो खात्मा हो चुका था. दिस इज स्टैचू ऑफ बुद्धा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको स्टैचूज जो है वो बहुत सारे देखने को मिलेंगे, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि इनका आर्ट किस किस्म का था. इनको स्टोन कार्विंग का बहुत ज़्यादा शौक था. दिस इज ऑल्सो अ स्टैचू ऑफ बुद्धा.
So my dear students, take a clear and detailed map of Khyber Pakhtunkhwa and ask students to come and point out the areas of Gandhara civilization. So my dear students, क्योंकि मैं आपको different maps से already गंधारा civilization दिखा चुकी हूँ, तो teachers आप भी class में एक दफ़ा map शो करें खैबर पख्तूनख्वा का, not all map of Pakistan or the subcontinent, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का मैप बच्चों को दिखाएं और बच्चों से पूछें कि किन किन इलाकों में गंधारा सिविलाइजेशन जो है वो मौजूद थी. So here is the map of खैबर पख्तूनख्वा. So I can locate first of all Peshawar, Charsadda, Sawat. These were the areas where this civilization was observed, and the eastern part of Afghanistan near river Kabul. So यहाँ पर जो है हमें गंधारा civilization जो है वो देखने को मिली. Okay, my dear students, so what have you learned about Gandhara civilization? Basically, Gandhara civilization जो है इसका जो history है और जो इसकी पॉलिटिक्स है, इसका जो रिलीजन है, वो बहुत सारे रूलर्स से और एम्पायर्स से इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ एम्परर्स और मुख्तलिफ जो सिविलाइजेशंस हैं वो आकर काबिज होती रही हैं, जिसकी वजह से इनका जो हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंज में रही है. So my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from bio teacher. So name at least 3 rulers who have ruled Gandhara civilization: Alexander the Great, Mauryaans and Kushans. What was the religion of Gandhara civilization? Buddhism in particular, but before Buddhism they used to practice Hinduism. What are the 2 theories about the name of Gandhara civilization? So Gandhara means, Gandhar is a Sanskrit word, and one theory says that it is land of fragrance and the other says it is land of water. So where was Gandhara civilization settled? It was settled along Kabul river, along the border of Afghanistan and Khyber Pakhtunkhwa. So my dear students, for homework you will encircle the correct answer. The religion of Gandhara people was Buddhism. So for homework you will do question number 2, 8 and 9 from section B. What is the meaning of Gandhara? What was the religion of Gandhara people? Enlist the important cities of Gandhara. So my dear students, the wrap up of the lesson: Gandhara civilization was mainly located on the Kabul river in Peshawar Valley, and the Gandhara people had witnessed many kings, and the religions practiced by these people was Buddhism. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Have a good day. Thank you so much, and Allah Hafiz.